Departmental accounting question on interdepartmental transfer at selling price. Let us see. Messrs X has two departments A and B. From the following particulars, prepare the consolidated trading account and departmental trading account for the year ending 31st December. Opening stock at cost. यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए देयर आर टू कॉलम्स, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का है और यहाँ पे सारी डिटेल्स दिए हुए हैं डिपार्टमेंट ए और बी का. सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट. रिमेंबर एट कॉस्ट मतलब होता है कॉस्ट टू ईच डिपार्टमेंट. नाउ सो 20,000 12,000 परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स है, वेजेस है, कैरेज है. ठीक है. सो ऑल दीज पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी. ठीक है. नाउ कम्स क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक परचेज्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. परचेज्ड गुड्स का देखिए यहाँ पे 4,500 और 6,000 दिया हुआ है और फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है यहाँ पे 24,000 और 14,000. फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया और परचेज गुड्स का मतलब क्या हो गया वो हम लोग आगे जाके रीड करेंगे क्वेश्चन में. चलिए. सो परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड. परचेज गुड्स को भी ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पे बाय डिपार्टमेंट ए टू बी. ए के कॉलम में देखिए 10,000 है, बाय डिपार्टमेंट ए टू बी. बी के कॉलम में देखिए 8,000 है. Then finished goods transferred by A to B 35,000 in A's column, by B to A 40,000 in A's column. Return of finished goods by A to B 10,000 and by B to A 7,000. You are required that purchased goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost and finished goods at departmental market price, and that 20% of the finished stock closing at each department represent finished goods received from the other department. Very important point and very बहुत अच्छी तरह से इसको देखना है. So what is happening in this particular situation is कि these two departments A and B are existing in Messrs X. ठीक है. अभी क्या है डिपार्टमेंट A and डिपार्टमेंट B are exchanging goods. ठीक है. नाउ देर आर टू काइंड्स ऑफ गुड्स इन दिस क्वेश्चन विच इज मेंशन्ड इज एज परचेज गुड्स एंड दी प्रोसेस्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स. ठीक है. जो परचेज गुड्स है वो जब ट्रांसफर हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दैट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस एट कॉस्ट प्राइस. सो व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड, व्हेन परचेज गुड्स आर ट्रांसफर्ड बाय एनी ऑफ द डिपार्टमेंट टू द अदर डिपार्टमेंट, then the transfer is happening at cost price. But when we are talking about finished goods are transferred at individual department ka market price mein. So we have to find out what is the market price of individual department, then only we can find out what is the percentage of profit that each department, the transferee department, is earning out of the transfer. So let us see यहाँ पे one more thing, the most important point mentioned in this particular situation is 20% of the finished goods of respective department, 20% of the finished stock at respective department belongs to the transferred goods. So it means that when goods are getting transferred to another department and we have closing stock of finished goods in individual department, तो finished goods जो है उसका जो stock है उसमें 20% is from the ट्रांसफर्ड गुड्स. इसका मतलब क्या है अगर मैं एकदम सिंपल सा तरीका से यहाँ पे देखूँ, फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक when we are looking at the information of closing stock 24,000 of A and 14,000 of B, it means that 24,000 का 20% which is 4,800 approximately. So that 4,800 is coming from transfer from department B and similarly 14,000 का भी 20% वो A से ट्रांसफर हुआ है. So we have to find out profit which is included in this 4,800 and that 14,000 का 20% which is 7,000. Sorry, 700. So what we are going, how do we approach this question? The very first thing that we have to do here is to open departmental trading account. ठीक है. So the very first thing that we have to do is we just find out the information which is applicable to the trading account and then put all the information in those ledger. So in that ledger, so in the very first, our first step will be in the books of Messrs X departmental trading account for the year ended 31st December. Now to opening stock, सबसे पहले यहाँ पे आएगा to opening stock.
सो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में इट वाज मेंशन डिपार्टमेंट ए का 20,000 एंड बी का 12,000. सो 20 एंड 12. देन परचेजेस इज गिवन. ठीक है, परचेजेस 92,000 68,000 है. क्वेश्चन को फॉलो करना है. सेल्स 1,40,000 एंड 1,12,000. उसको जस्ट हुबहू लिख देना है. कैरेज ऑन परचेजेस, तो यहाँ पे कैरेज दिया हुआ है तो कैरेज डेफिनेटली ये डेबिट होगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में. 2,000 एंड 2,000 दोनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है. वेजेस भी दिया हुआ है 12,000 एंड 8,000. जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है. देन क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 4,500 एंड 6,000 फॉर परचेज गुड्स ऑफ ए एंड बी एंड फिनिश्ड गुड्स 24,000 एंड 14,000. जस्ट राइट इट डाउन. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड. ठीक है, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड तो बाई डिपार्टमेंट ए बी टू ए. सो बाई डिपार्टमेंट बी टू ए, इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट ए को ट्रांसफर कर रहा है गुड्स. तो कितना ट्रांसफर कर रहा है? डिपार्टमेंट बी जो है वो 10,000 का ट्रांसफर कर रहा है. सो वी विल राइट बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. बी के कॉलम में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे 10,000. ठीक है. एंड सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा, अगर B से A में ट्रांसफर होता है 10,000, सो इसका मतलब क्या है कि B के कॉलम में एज सेल्स आएगा. एंड देन सिमिलरली वी विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल राइट A के कॉलम में टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स. A के कॉलम में 10,000. ठीक है. सिमिलरली बाई परचेज गुड्स ट्रांसफर हो रहा है बाई A टू B 8,000. सो हम लोग बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ए के कॉलम में 8,000 लिखेंगे और डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट में बी के कॉलम में 8,000 लिखेंगे. ठीक है. सो इट वाज द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स. एंड रिमेंबर दिस परचेज गुड्स व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग, इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इट इज हैपनिंग एट कॉस्ट प्राइस, नॉट एट मार्केट प्राइस. ठीक है. नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड बाई ए टू बी 35,000. ठीक है. सो हम लोग बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स में जाएंगे, वहां पे 35,000 लिखेंगे हम लोग ए के कॉलम में. एंड अगेन टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स बी के कॉलम में 35,000. एंड देन यहाँ पे है बाई बी टू ए 40,000. सो अगेन बाई इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बी के कॉलम में हम लोग लिखेंगे 40,000. एंड देन यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में ए के कॉलम में लिखेंगे 40,000. सो इट इज डन. टिल यहाँ तक हमारा हो गया. अभी हमारा काम है यहाँ पे रिटर्न्स भी कुछ हो रहा है. ठीक है. सो ये हम लोग सिंपल सा बात है, ये हम लोग यहाँ पे रिटर्न्स लिख देंगे. टू रिटर्न्स ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक है. फिनिश गुड्स रिटर्न हो रहा है. सो ये 10,000 रिटर्न कर रहा है ए बी को. ठीक है. 10,000 रिटर्न कर रहा है ए बी को. तो हम लोग बी के कॉलम में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे 10,000 टू रिटर्न ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स. ए बी के कॉलम में 10,000 और बी ए को रिटर्न कर रहा है, तो ए को रिटर्न मिल रहा है ना ए को. सो वहां पे 7,000 हम लोग लिख देंगे. सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक है. रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग लिखेंगे ए के कॉलम में 10,000. वाई? बिकॉज ए बी को रिटर्न कर रहा है, तो ए के कॉलम में 10,000 और बी ए को ट्रांसफर कर रहा है 7,000. सो बी के कॉलम में 7,000. ठीक है. नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है क्लोजिंग स्टॉक वगैरह. यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया. ऑलमोस्ट नहीं, हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया. सो वी विल बैलेंस दिस ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. देखिए अभी तक मैं प्रॉफिट ऑफ ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग टिल नाउ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. बाय डूइंग दैट वी विल गेट टू नो कि व्हाट इज द परसेंटेज और व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे. पहले तो हम लोग बैलेंस करेंगे. सो वी आर गेटिंग टोटल ऑफ ए का कॉलम में, टोटल ऑफ डिपार्टमेंट ए इज 2,21,500 एंड बी का 1,89,000. ठीक है. सो वी विल बैलेंस दिस. वी आर गेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट 38,500 फॉर ए एंड 46,000 फॉर बी. तो चलिए ये हमारा हो गया यहाँ तक डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट. कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बाद में बनाएंगे. हाँ, वो भी इजी है, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. अच्छा बना ही लेते हैं ना. ठीक है, बना ही लेते हैं एक बार. कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है व्हेन बोथ ए एंड बी का ट्रेडिंग अकाउंट को आप मर्ज जब कर दें. ठीक है. अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट हमने लिखा है. अच्छा मैं ऊपर में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको,
ये यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये पूरा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। और नीचे यहाँ पे देखिए आप कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट है। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग शुरू करते हैं डिपार्टमेंट ये आपका ओपनिंग स्टॉक से। सो वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट 20,000 एंड 12,000, ठीक है। सो 20 + 12 कितना हो गया, 20 ए का है और 12 बी का है। सो वी ऐड बोथ ऑफ दीज टुगेदर, तो 20 + 12 32,000 हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह से परचेजेस मेरा 92,000 और 68,000 है। टोटल करना है तो देखिए 1,68,000 आएगा। देन कम्स हमारा वेजेस, राइट, वेजेस हमारा 12 एंड 8,000 है, 20,000 हो गया। उसके बाद हमारा कैरेज 2,000 एंड 2,000 4,000 हो गया। जस्ट राइट इट डाउन लाइक दैट। देन हम लोग चले जाएंगे सेल्स में, ठीक है। सेल्स हमारा 1,40,000 एंड 1,12,000 है, उसको 2,52,000 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक 10,500 होगा। कैसे होगा, परचेज गुड्स का 4,500 एंड 6,000 एंड अगेन फिनिश्ड गुड्स 24,000 एंड 14,000, वी आर गेटिंग 38,000, ठीक है। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया। अभी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं है, हम लोग को क्या करना है, हमारा जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो प्रॉफिट है, जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का जो प्रॉफिट होता है ना, वी ऑल्सो हैव टू डेबिट दैट अमाउंट। तो यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व बोल के हम लोग को उसको लिखना है। बिफोर डूइंग दैट जस्ट एक बार इसको सारा चीज को हम लोग हटा देते हैं। हम लोग खाली अभी वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का अनरियलाइज प्रॉफिट। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रेड विद द वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में हम लोग दो कॉलम पहले बना लेते हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, ठीक है। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का ये दो कॉलम हम लोगों ने बना लिया। मैं पहले खाली डिपार्टमेंट ए के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं। तो डिपार्टमेंट ए का यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग देखें, फिनिश्ड गुड्स का खाली देखना है बिकॉज ओनली फिनिश्ड गुड्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू डिपार्टमेंट बी एट सेलिंग प्राइस, राइट, एट मार्केट प्राइस। सो 24,000 वॉज दी डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, ठीक है। सो उसका अगर मैं 20% करता हूँ, आई एम गेटिंग 4,800। सो यहाँ पे लिखना है क्लोजिंग स्टॉक आउट ऑफ ट्रांसफर 4,800, ठीक है। इसके साथ जो सेल्स हो रहा है उसको वी विल ऐड, हम लोग प्लस करेंगे। अच्छा, ये 4,800 को अलग रखते हैं, ठीक है ना। ये 4,800 को ऐड नहीं करना है, ये 4,800 को हम लोग अलग रखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस कीप इट दैट वे। वी हैव टू फाइंड आउट, रिमेंबर वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट इंक्लूडेड इन दिस 4,800. So this is the proportion of closing stock which was transferred from B to A. So it is very important for us to find out profit percentage of B, because B का जो भी gross profit rate होगा, जो भी gross profit percentage होगा, वही profit percentage applicable होगा 4,800 में. Now why? The reason being B is transferring goods to A. So B is using its market price to transfer goods to A. So whatever profit B was earning out of transferred in sales, out of say like उसका जो gross profit percentage है, वही profit percentage ये 4,800 में included है. तो हम लोग B में भी चलते हैं, चलिए एक ही साथ करते हैं. तो B कॉलम में भी देख लीजिए, B कॉलम में हमारा 14,000 रुपीज हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ था. तो 14,000 का 20% इज कमिंग टू 10% 700 आपका 2,000 सॉरी 14,000 20% इज 2,800, राइट. 14,000 into 20% is 2,800. So 14, हाँ. So now this 2,800, we will write this 2,800. Now this 2,800 is the proportion of stock which was transferred from A to B. So whatever profit percentage A was following, that profit content is included in department B's closing stock of transferred goods. So 2,800 में हम लोग को निकालना है. चलिए तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं. पहले हम लोग ए का प्रॉफिट यहाँ पे नेट सेल्स प्लस ट्रांसफर निकाल लेते हैं, बी का भी निकालेंगे. पहले ए में आते हैं. ए का मेरा सेल्स है देखिए 1,40,000. इससे हम लोग ऐड करेंगे ट्रांसफर कितना हो रहा है देखिए. फिनिश गुड्स खाली लेना है 35,000 हमारा आ गया. 1,40,000 प्लस 35,000 वी आर गेटिंग 1,75,000. इससे हम लोग रिटर्न्स माइनस करेंगे. रिटर्न्स ये कौन सा रिटर्न्स है, जो दूसरे डिपार्टमेंट ने ए को रिटर्न कर दिया, ठीक है, मतलब बी ने ए को रिटर्न कर दिया, तो 7,000, ठीक है. सॉरी, ए ने बी को रिटर्न कर दिया, ठीक है. अच्छा,
सो नेट सेल हमारा आ गया 1,68,000। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है, द फॉर्मूला इज जीपी बाई सेल इंटू 100, है ना। तो जीपी बाई सेल इंटू 100, तो ये 1,68,000 जो आ गया ना, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा आपका। यहाँ पे कैसे निकालना है, देखिए ए का जो प्रॉफिट है, ए का जो प्रॉफिट है वो है आपका 38,500। सो ए का 38,500 है, डिवाइड करना है उसके टोटल सेल से, नेट सेल से, विच इज वी हैव कैलकुलेटेड 1,68,000 इंटू 100 करेंगे, वी आर गेटिंग 22.916%. सो दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज विच ए इज getting out of each transfer and out of each sale to outsiders. Now ये 22.916% दिमाग में रख देना है, ठीक है ना। चलिए अभी बी में आता है, अच्छा याद रखना ये जो 22.916% है, ये हम लोग को अप्लाई करना है 2800 में, ठीक है, 2800 में। तो मैं बाद में आता हूँ उसमें। नाउ लेट अस अगेन स्टार्ट विद बी। बीज टोटल सेल इज 1,12,000। उससे हम लोग ऐड करेंगे ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। अच्छा क्यों ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग दीज टू फिगर्स टुगेदर बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स. नाउ हियर sale is happening in two different stages. One, it is selling it to outsiders, and the other, it is selling it to the other department. Now you will have a question in your mind that ki how are you calling interdepartmental transfer as sales? Because the interdepartmental transfer is happening at sale price. That is why, for the sake of convenience, I am calling it sales. तो उससे कंफ्यूजन थोड़ा घट जाएगा. सो जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है सेलिंग प्राइस में, उसको भी मैं सेल्स में हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा. सो 1,12,000 एज सेल्स, 40,000 एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ बी. हमारा टोटल आ गया, टोटल सेल आ गया 1,52,000. यहाँ से जो रिटर्न्स हुआ 10,000 का, देखिए रिटर्न्स है, इस 10,000 को डिडक्ट करना है. डिडक्ट करने से वी आर गेटिंग 1,42,000 एज नेट सेल्स. नाउ डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट है यहाँ पे 46,000 रुपीज. सो 46,000 is the profit divided by total net sale, which is 1,42,000 into 100. We are getting 32.9394%. Again, we are having net sales as 1,42,000 for department B, net sales plus transfer. So 1,42,000 is the total sale. हमारा gross profit यहाँ पे 46,000 है B का, so 46,000 profit by सेल. तो 46,000 बाई 1,42,000 इंटू 100, वी आर गेटिंग 32.9394%. ये हमारा जीपी परसेंटेज आ गया. नाउ इज द टाइम टू फाइंड आउट अनरियलाइज प्रॉफिट और स्टॉक रिजर्व. सो हम लोग आएंगे एक बार पहले प्रोपोर्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, प्रोपोर्शन ऑफ स्टॉक विच इज ट्रांसफर्ड बाय डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए. 4800 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. सो 4800 में हमारा जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो बी का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा. सो हाउ मच प्रॉफिट इज इंक्लूडेड? सो बी का परसेंटेज आया हमारा 32.394. वी विल अप्लाई दैट थिंग, दैट परसेंटेज टू 4800 एंड वी आर गेटिंग 1,555. सिमिलरली वी विल डू द सेम फॉर डिपार्टमेंट बी. यहाँ पे 2,800 है डिपार्टमेंट बी का. उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है वो होगा डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट परसेंटेज, बिकॉज ए ने ट्रांसफर किया था बी को वो सामान, और बी के क्लोजिंग स्टॉक में 2,800 का जो पोर्शन है वो आपका डिपार्टमेंट ए से है. सो ए का जो जीपी परसेंटेज है दैट इज 22.916%. उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2,800 से. वी आर गेटिंग 641 रुपीज़. सो ये 1,555 एंड दिस 641, इन दोनों को टोटल कर लीजिए. वी आर गेटिंग 2,196. हम लोग कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में वापस आएंगे. हम लोग वापस आए ये कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में. यहाँ पे हम लोग को डेबिट करना है टू स्टॉक रिजर्व 2,196 रुपीज़. अब हम लोग बैलेंस कर देंगे ये कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट. वी आर गेटिंग टोटल एज 3,05,500 एंड हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जा रहा है कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट से 82,304 रुपीज़. द मोस्ट कंफ्यूजिंग पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज, देर आर टू एक्चुअली, two things were there which could have created a little bit of confusion. Try to keep your mind clear and calm, right, when you are reading the question. Read the question twice, thrice, no matter how many times you need to read the question.
keep in your mind that all the information which are very important for to solve the question, to write down the working notes, उसको दिमाग में रखना है. So all these information, the first information was purchased goods are transferred at cost price. So we don't need to find out any stock reserve included in purchased goods because there is none. In case of finished goods, department A is transferring goods to B and B is transferring goods to A. Now, second information which is mentioned in the question is 20% of stock, 20% of the stock of individual department belongs to the transferred goods. इसका मतलब जो 20% स्टॉक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वॉज ए का 24,000 और बी का 14,000. सो 24,000 जो ए का क्लोजिंग स्टॉक है वो पूरा बी से नहीं आया उसके पास. उसका खाली 20% जो है वो बी से ट्रांसफर हुआ सामान है. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% ऑफ द स्टॉक बिलोंग्स टू ट्रांसफर्ड फ्रॉम गुड्स फ्रॉम बी. एंड सिमिलरली 14,000 का 20% विच इज अगेन 2,800 वो ए से आया हुआ है. तो उसी पे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे. एंड रिमेंबर द थर्ड थिंग इज वेरी माइन्यूटली व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट ग्रॉस प्रॉफिट फॉर परसेंटेज, वी ऑलवेज हैव टू इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एट सेलिंग प्राइस विथ सेल्स. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100 ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस जब भी होता है वी हैव टू इंक्लूड सेल्स के साथ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस को टू फाइंड आउट करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. और उस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को वी विल अप्लाई पोर्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड इन दी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. सो यहाँ पे 4,800 पे वी हैव अप्लाइड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का जो यहाँ पे हुआ है बी से ए में. 4,800 जो ए का हमारा निकला उसमें हम लोग बी का जो 32.9394% है वो अप्लाई करेंगे और बी में जो 2,800 आया उसमें ए का परसेंटेज को फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ऑन क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक रिजर्व.